Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो शुरू करेंगे। तो आप सभी का साप्ताहिक हिंदी भागवत गीता में स्वागत है। हम आज अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 35 से शुरू करेंगे। भयद्रनद उपारतम मामस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवाम्। भयात भय से, रणात युद्ध भूमि से, उपरतम विमुख, मनस्यते मानेंगे, त्वाम तुमको, महारथा बड़े बड़े योद्धा, येषाम जिनके लिए, च भी, त्वम तुम, बहुमतः अत्यंत सम्मानित, भूतवा होकर, यास्यसि जाओगे, लाघवान तुच्छता को। भावार्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भावार्थ, जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तात्पर्य, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। श्लोक 35 में श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो अर्जुन जो आप कर रहे हैं वो ना करें, ऐसा मत करो, युद्ध भूमि छोड़ के नहीं जाओ। कृष्ण जी अपना ये निर्णय सुना रहे हैं कि अगर तुम यह युद्ध भूमि छोड़कर चले जाओगे तो लोग यह नहीं सोचेंगे कि तुम दया करके युद्ध भूमि छोड़कर चले,
लेकिन लोग यह सोचेंगे कि भारत का यह विशाल युद्ध तो बुधवार हो ना, म्यूट करेंगे क्या? 31 मार्च बुधवार हो तो बुधवार में क्यों कि 31 मार्च की ईयर एंडिंग की जो बैंक के काम बहुत सारा बाकी है। राजेश्वर प्रभु जी म्यूट करेंगे क्या? यस माता जी, वो समझ ही रहा था, हो गया अभी। सॉरी। ओके, सो श्लोक 35 में कृष्ण जी अपना निर्णय सुना रहे हैं कि अर्जुन तुम ऐसा मत करो, समाज के लिए तुम एक आदर्श हो, और अगर तुम यह युद्ध भूमि छोड़कर चले जाओगे तो लोग तुम्हें तुच्छ मानेंगे, मीनिंग तुम्हें बहुत नीचा देखेंगे। तुमने बहुत सारे महायोद्धाओं को युद्ध में हराया है, लेकिन अगर तुम यह युद्ध भूमि छोड़कर चले जाओगे तो लोग सोचेंगे कि तुम डर के मारे यह युद्ध भूमि छोड़कर चले गए। महाभारत का जो ये विशाल सेना को देखकर तुम ये युद्ध भूमि छोड़कर चले गए। लोग ये नहीं सोचेंगे कि तुम दया भाव के कारण यह युद्ध भूमि छोड़ दिए, क्योंकि लोग आपके मन में क्या चल रहा है वो नहीं देखते, आप क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग यह सोचेंगे कि आप डर के कारण छोड़ दिए। आज के समय में भी आप क्या कर रहे हैं, लोग उससे आपकी वैल्यू समझते हैं। आपके आसपास वाले, आपके रिश्तेदार, आपके व्यवहार को, आपके एक्शंस को देख के वो आपके ऊपर निर्णय निकालते हैं। आपके मन में क्या है वो आपको नहीं देखते। और अगर आज कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, अगर आप नेकी का सोच भी रहे हो तो सामने वाला उसको उसी ढंग से लेता है या नहीं लेता है वह समझना मुश्किल है। सो एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि छोड़ के जाना गलत है, वो नहीं जा सकता। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध भूमि में युद्ध करो, युद्ध भूमि को छोड़कर ना जाओ, नहीं तो तुम्हारा सम्मान जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा। अध्याय 2 श्लोक 36। अगर श्लोक 35 में किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज ऐड करिए, नहीं तो मैं श्लोक 36 पढ़ती हूँ। कंटिन्यू माता जी। ओके, श्लोक 36। अवच्य वदंश्च बाहुं वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दान्तस्तव समर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवच्य कटु, वादन मिथ्या शब्द, च भी बहुन अनेक, वदिष्यन्ति कहेंगे, तब तुम्हारे अहिता शत्रु, निंदतः निंदा करते हुए, तब तुम्हारी सामर्थ्य को, ततः अपेक्षा, दुःखतरम अधिक दुखदाई, नु निसंदेह, किम और क्या है। भावार्थ, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तात्पर्य, प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन ने अयाचित दया भाव पर प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनायोचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। श्री कृष्ण कह रहे हैं श्लोक 36 में कि एक क्षत्रिय के लिए दया भाव करना युद्ध भूमि में ठीक नहीं है। जो दया भाव आपको आपके कर्तव्य से विमुक्त करे, कर्तव्य से पीछे ले जाए, ऐसा दया भाव करना नरक की ओर ले जाता है। दया उस पर करना है
दया करने के लिए भी एक देखना है कि आप किस पर दया कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर दया करना जो पलट के आपके ऊपर वार करें, वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर अर्जुन युद्ध भूमि छोड़कर चले भी जाते हैं तो कौरव उनको नहीं छोड़ेंगे दया से, वो उनके ऊपर उनको पीठ पे हमला करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे पांडवों को परास्त कर सके। सो दया करना ऐसे लोगों पर भी ठीक नहीं है, और एक क्षत्रिय के लिए दया करना युद्ध भूमि पर तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, वो एक सही बात नहीं है। दया करके युद्ध भूमि छोड़ने से योद्धा नरक में जाता है। सो कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि द्रौपदी जैसे शुद्ध भक्त का कौरवों ने अपमान किया था, उसी समय उनकी मृत्यु श्री कृष्ण ने लिख दी थी। तो अगर अर्जुन युद्ध भूमि छोड़कर चले भी जाते हैं तो भी उनका समाप्त तो निश्चित है 18 दिनों में, लेकिन श्री कृष्ण जी अर्जुन को इसका निमित्त बनाना चाहते हैं ताकि अर्जुन अपने हाथ से उनका वध कर सके। ये अर्जुन जो है वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक पुराना एग्जाम्पल अगर ले यहाँ पे, तो पृथ्वीराज चौहान अगर आप उनको देखें तो उन्होंने 16 बार मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन 17वीं बार जो मुगल है उसने वापस में उसको वार किया पृथ्वीराज चौहान को, और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। सो पृथ्वीराज चौहान इतना दया करने के बाद 16 बार मोहम्मद गौरी को छोड़ने के बाद भी मोहम्मद गौरी बार बार पलट के वार करता रहा, और 17वीं बार में उन्होंने उसे हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान का उन्होंने लोहे के गरम गरम लोहे से आंख भी नोच कर निकाल लिया। सो युद्ध भूमि में दया करना आपको नरक में ले जाता है। आपको दया किस पर करना है, किस पर नहीं करना है, यह बहुत बड़ा डिसीजन है। आप इसको बस छोड़ नहीं सकते कि कौरव मेरे भाई हैं ये सोच के। सो आज तक अगर आप इंडियन हिस्ट्री में देखें तो पृथ्वीराज चौहान को ये बोला जाता है कि क्या वो दोषी थे भारत में मुगल्स और ये सब राज आने के लिए, क्योंकि अगर वो मोहम्मद गौरी को पहली बार में ही परास्त कर देते तो भारत को ये पूरा देखना नहीं पड़ता। ये ऐसा है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर है, वो चोर को पकड़ के ये बोल रहा है कि दया करके अगर छोड़ दे रहा है, और वो चोर या डकैत वापस से चोरी या डकैती करता है, तो ये सही नहीं है। हर एक इंसान की अपनी एक ड्यूटी, एक कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य को निभाना बहुत जरूरी है। अगर कोई एक पुलिस ऑफिसर या एक राजा या एक कोई भी अपना कर्तव्य से पीछे हटता है तो वो सही नहीं है। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में युद्ध करना उसका कर्तव्य है, इसीलिए हे अर्जुन तुम उठो और युद्ध करो। अध्याय 2 श्लोक 37। शायद मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, लेकिन मुझे इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन समझाना नहीं आता। अगर किसी को कोई पॉइंट्स ऐड करना है तो प्लीज करिए। नहीं, परफेक्ट है। नहीं माता जी, इट्स गुड। ओके, 1 सेकेंड, ये पेज कहीं चला गया, 2 मिनट। अध्याय 2 श्लोक 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। हतः मारा जाकर, वा यासो प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, स्वर्गम स्वर्गलोक को, जित्वा विजयी होकर, वा अथवा भोक्ष्यसे भोगेंगे, महिम पृथ्वी को, तस्मात् अतः उत्तिष्ठ उठो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, युद्धाय लड़ने के लिए,
कृत दृढ़ निश्चय संकल्प से। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्ग लोक को जाएगा। एक क्षत्रिय को युद्ध भूमि में युद्ध करने से स्वर्ग प्राप्त होता है, भले ही वह युद्ध भूमि में युद्ध हार जाए या जीत जाए। कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम उठो और युद्ध करो। अगर तुम युद्ध हार गए तो तुम स्वर्ग में जाओगे, अगर तुम युद्ध नहीं हारे तो तुम पृथ्वी पर राज्य करोगे। पुराने उस जमाने में जो भी भारतवर्ष का राजा सम्राट हुआ करता था वो पृथ्वी पर राज करता था। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि तुम उठो और युद्ध करो। हार गए तो स्वर्ग में जाओगे, नहीं भी हारे तो पृथ्वी पर राज्य करोगे। दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर तुम युद्ध भूमि छोड़कर चले जाते हो तो तुम नरक में जाओगे। युद्ध भूमि छोड़कर जाने से हानि है, मगर युद्ध भूमि में रहने से लाभ ही लाभ है। और बहुत सारे लोग, कृष्ण जी ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन एक क्षत्रिय के लिए एक युद्ध भूमि में अपना कार्य करना, अपना कर्तव्य करने से ही उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। तो युद्ध को युद्ध जैसा समझो, क्षत्रिय का कर्तव्य निभाओ और युद्ध करो। युद्ध करने से सिर्फ लाभ है। कोई पॉइंट्स ऐड करना चाहेगा यहाँ? थैंक यू अदिति। मतलब बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो आपने दिया, इट्स रियली नाइस। आई मीन जैसे ये लास्ट पॉइंट कि क्षत्रिय के लिए युद्ध करना ही उसका कर्तव्य है, उसी तरह हम सभी अपने अपनी जगह पे, चाहे मैं एक माता हूँ या कोई पिता है, तो सबका अपना अपना कर्तव्य है। कृष्ण वहाँ यहाँ जो समझा रहे हैं, आपने जो ये प्रैक्टिकल पॉइंट दिया है कि सबको अपना अपना कर्तव्य करते रहना पड़ेगा, मतलब हम लोग इससे पीछे नहीं हट सकते। ये पॉइंट अच्छा लगा। और मुझे इसके पहले वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा लगा, जब आपने एग्जाम्पल देके समझाया कि दया भाव किसके ऊपर करना चाहिए। मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा था कि हम दया सभी पर कर सकते हैं, बट दया 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 के पात्र अगर पलटकर, मतलब हमको सिर्फ अपना भी नहीं देखना चाहिए व्हेन वी आर सीइंग कि ये जो इंसान है और जिसपे हम दया कर रहे हैं, हाउ ही इज डिस्ट्रॉइंग ना हम लोग का, लाइक हमारा स्पिरिचुअल लाइफ या फिर हमारा लाइफ या किसी और को, जहाँ पे ये दुर्योधन एंड उसके पार्टी, ये लोग पूरे सोसाइटी के लिए देवर लाइक पूरे सोसाइटी के लिए खराब थे। तो ऐसे लोगों पे दया करना इज कम्प्लीटली रॉन्ग। दैट मतलब वो क्लैरिफिकेशन आई लाइक रियली वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। आपने ये पॉइंट नहीं बोला कि हर को अपना कर्तव्य करना है। हमको अपने डेली रूटीन में भी हम एज अ माता है या फादर पिता है, तो सबको अपना अपना कर्तव्य निभाना है, कोई अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। दैट इज द पॉइंट। श्लोक 38। मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, सॉरी, मुझे इतना एक्सप्लेनेशन नहीं आता। अगर किसी को भी कुछ अभी बीच में बोलना है तो प्लीज रोक के बोलिए मुझे। अध्याय 2 श्लोक 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्यव्य नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे तथा दुख में
करके लाभ अलाभव, लाभ तथा हानि दोनों, जय अजय, विजय तथा पराजय दोनों, ततः तत्पश्चात युद्ध करने के लिए युजस्व, लगो या लड़ो, न कभी नहीं, एवं इस तरह पापम पाप अवास्यसी प्राप्त करोगे। भावार्थ, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य, अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भगवानामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन या फल महीन होता है। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावना अमृत में कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सॉरी, इंटरनेट ड्रॉप हो गया और सब बंद हो गया सडनली। नो प्रॉब्लम माता जी, मेरा भी ऐसी प्रॉब्लम हो गया था। एनीवेज वी कैन कंटिन्यू। सो सॉरी। ओके, I'll start again from अध्याय 2 श्लोक 38। सुख दुख समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्यव्या नैवं पापम अवप्यसि। सुख सुख दुखे तथा दुख में समय समाभाव से कृत्वा करके लाभ अलाभव लाभ तथा हानि दोनों जय जयो अजयो विजय तथा पराजय दोनों ततः तत्पश्चात युद्धाय युद्ध करने के लिए युजस्व लड़ो न कभी नहीं एवं इस तरह पापम पाप अवाप्यसी प्राप्त करोगे। भावार्थ, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य, अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध करना चाहिए क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन महीन होता है। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु कृष्णा भावना अमृत में के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कार्य करने वालों के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में चैप्टर 11 में कहा गया है, देवर्षि भूतात निर्णाम पितृणाम न किंकरो नयम ऋणी च राजन सर्वात्मा यह शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्या कृतम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह ना तो किसी का ऋणी है और ना किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्ट की जाएगी। अध्याय 2 श्लोक 38 में कृष्ण जी यह कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम युद्ध के लिए युद्ध करो। तुम्हारा ड्यूटी है युद्ध करने का, इसलिए तुम युद्ध के लिए युद्ध करो। तुम ये नहीं सोचो कि उससे क्या नुकसान होगा, क्या लाभ होगा। ये नहीं सोचना लाभ हानि, क्या फल की प्राप्ति होगी, ये सब अलग रखकर सिर्फ युद्ध के लिए युद्ध करो। हर इंसान को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। जैसे एक घर में माँ अपना कर्तव्य का पालन करती है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, वह बच्चे के लिए या अपने पति या हस्बैंड के लिए जो उसका कर्तव्य है वो करती है। सुबह जल्दी उठना, बच्चों को स्कूल भेजना या जो भी काम है, सब अपने लिए सब माँ एक काम करती है। उसी तरह हर एक इंसान का अपना अपना कर्तव्य होता है और उसे उस कर्तव्य का पालन करना है, बिना यह सोचकर कि उससे क्या हानि या क्या लाभ होगा। सिर्फ युद्ध के लिए ही युद्ध करना है। सुख दुख ये सब हमें नहीं देखना है। इस श्लोक में एक पॉइंट ये भी है कि कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि जो भी काम करना है वह कृष्ण जी के लिए करना है। कृष्णा को हमेशा कृष्णा कॉन्शियस होके करना है, कृष्णा को हमेशा माइंड में रखकर करना है। कोई भी काम जो लोग करते हैं जिसमें कृष्णा भाव नहीं रहता है, उसमें लोगों को लाभ या हानि होती है। लेकिन अगर कोई भी कार्य
कृष्ण जी को दिमाग में या मन में रखते हुए कार्य किया जाए तो वो किसी का भी ऋणी नहीं रहता, मीनिंग उसको कोई भी ऋण नहीं लगता, कोई भी उसे लाभ या हानि का उसे कोई मतलब नहीं रहता है। तो हमें दिन भर में कई तरीके का ऋण लगता है, जैसे सूर्य भगवान सूर्य की रोशनी देते हैं तो वो ऋण लगता है। वायु वायु, क्योंकि दिन भर हमें हवा की प्राप्ति होती है तो उससे हमें वायु भगवान का भी ऋण लगता है, या दिन भर साधु का ऋण लगता है जो हमें अच्छा ज्ञान देते हैं उसका ऋण लगता है, तो काफी ऋण रहता है। लेकिन अगर हम अपने डेली रूटीन में श्री कृष्ण को दिमाग में रखते हुए अगर कर्तव्य करेंगे तो हमें कोई भी ऋण नहीं लगेगा। जो भी भौतिक सुखों के लिए काम करता है, किसी फल या हानि के प्राप्ति के लिए कार्य करता है, उसे यह ऋण का भोग करना पड़ता है। ये अध्याय 2 श्लोक 38 है और मैं ऑलरेडी 4 श्लोक कर चुकी हूँ, मैं यहाँ पे समाप्त करूंगी। अगर किसी को भी कोई पॉइंट्स ऐड करना है तो प्लीज करिए। तो ये जो ऋण की बात आपने कही, लाइक इट्स अ रियलिटी चेक है। जैसे अगर हम कोई और पद्धति अपनाए तो हमें सूर्य को ऋण चुकाना पड़ेगा, चंद्र को सूर्य चुकाना पड़ेगा, जो हम सांस लेते हैं उसका भी ऋण चुकाना पड़ेगा, पितृ ऋण है, बहुत सारे ऐसे ऋण है। तो कोई अगर और कोई पद्धति हम अपनाते हैं तो हमारा जो जीवन है इस चक्र में ही रह जाएगा। जबकि ये कृष्णा कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावामृत जो पद्धति जो हमें श्रीला प्रभुपाद ने दिया है, ये इतना आसान है, जिसमें सिर्फ यही है कि हम गाते नाचते खाते कृष्ण के पास चले जाएंगे। मतलब क्योंकि प्रभुपाद ने ऐसा हमें सिखाया है कि कोई भी चीज करो, चाहे तुम कोई भी स्थिति में हो, कोई भी स्थिति में हो, कहीं पे भी हो, चाहे तुम बीमार बेड में पड़े हुए हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, किसी कोई भी रिलेशन में हो, कोई भी स्थान में हो, बस कृष्णा को मन में चिंतन करते हुए अपना कार्य करते रहो। सो ये इतना सिंप्लीफाइड प्रोसेस है और इतना अच्छा प्रोसेस है कि हमें हमें लाइक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। लाइक कितने योगी है जो कितनी सारी योगा साधना करते हैं, जो हमारे रिचुअल्स में भी जो लोग रिचुअल्स फॉलो करते हैं वो भी कितने सारे ऐसे रिचुअल्स हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं वो तो अज्ञान में रहकर, मतलब ऐसे है कि बर्थ एंड डेथ के साइकिल में घूम मतलब करते ही रहते, मतलब दे विशियसली दे आर इनटू दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। बट हम लोग इतने फॉर्चुनेट है कि प्रभुपाद ने हमें ये पद्धति दी है जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। मतलब वी आर काइंड ऑफ एंजॉइंग एंड देन कृष्णा को सेंटर में रख के हम लोग अपना लाइफ को सक्सेसफुल बना रहे हैं। सो दिस इज रियली लाइक इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब जहाँ पे मतलब हम लोग कीर्तन में डांस कर रहे हैं, वी हैव हम लोग के मतलब गाना गा रहे हैं, जैसे हर तरह का व्यंजन एंजॉय कर रहे हैं। सो और हमें और इस पद्धति में कोई ऋण भी नहीं लगता है। मैंने कल ही एक फ्रेंड से सुना, जैसे उनके फैमिली में किसी का डेथ हो गया है, तो ऐसा उनको बोला गया कि आपको यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स बिकॉज आपको पितृ ऋण लग रहा है। मतलब इस ऐसे टाइम पे किसी का डेथ होने से ऐसा कुछ तो है कि उनको पितृ ऋण लग रहा है। सो आपको बहुत सारे दान दक्षिणा करने पड़ेंगे, बहुत सारे यज्ञ करना पड़ेगा टू गेट आउट ऑफ दिस। सो लेकिन कृष्ण भावामृत में मतलब सुन के भी ऐसा डर सा लगता है कि ना, और उसके consequences इज वेरी बैड इफ आप नहीं किए तो जिनका डेथ हुआ है उनके बाद कई और मेंबर भी घर में जा सकते हैं। ऐसा सुन के भी डर सा लगता है। लेकिन चूंकि हम लोग कृष्ण भावामृत में हैं और कृष्ण जी
भगवत गीता में ये आश्वासन देते हैं, इनफैक्ट प्रॉमिस करते हैं कि अगर तुम सभी धर्मों को त्याग कर मेरे शरणागति में आ जाओ तो आई विल टेक केयर ऑफ इट। सो इसीलिए हम लोग को मतलब वो कॉन्फिडेंस मिलता है और हमें किसी भी ये ऋण चुकाने की जरूरत नहीं रहती है। सो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने ड्यूटी से विमुख हो जाए, मतलब हमारा मातृ धर्म जो भी है, जैसे मैं एक माता हूँ तो मेरा जो कर्तव्य है अपने फैमिली की तरफ वो मैं भूल जाऊं, बट जो भी काम कर रही हूँ अपने आप को कृष्ण के कृष्ण को याद करके चिंतन करके करूँ। सो दिस इज रियली बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग सो नाइसली। किसी और को कोई पॉइंट्स बोलना चाहेंगे? थैंक यू बाबू। हरे कृष्णा माता जी। दिस इज राशेश्वर दास। आपने माता जी आज जो एक इंग्लिश में सेइंग है ना कि लेस इज बेटर, वो आपने प्रूव कर दिया, या फिर आपने मोर इज बेटर को रॉन्ग प्रूव कर दिया है। जिस तरह से आपने एकदम टू द पॉइंट, एकदम संक्षिप्त में आपने जो आज अपने क्लास दिया है, आप देखेंगे कि अगर श्रीला प्रभुपाद जी भी थे, वो भी सारी की सारी क्लासेस जो देते थे अपनी, वो उनकी 20-25 मैक्सिमम 30 मिनट्स की होती थी, पर वो टू द पॉइंट और एकदम आपके हार्ट में आपको पियर्स करने वाली होती थी। तो उसी तरह से आपने भी आज जो टू द पॉइंट सारे आपने पॉइंट एकदम संक्षिप्त में कवर करे हैं, तो विच इज वेरी गुड। जनरली आजकल हम कलयुग की मेमोरी में हमारा ऐसा होता है कि हमें ज्यादा देर तक हम सुन भी नहीं पाते हैं, हम अपना कंसंट्रेशन भी नहीं कर पाते हैं। तो आपने सारी 4 श्लोक कवर किए, लेकिन आपने उसका पूरा सार जो है वो हमने निचोड़ के आपने हमें दे दिया माता जी। तो दिस इज वेरी गुड माता जी। हम फ्यूचर में भी चाहेंगे कि आप इसी तरह से हमारे साथ अपना जो ये नॉलेज है, रियलाइजेशन है, आप ये सब शेयर करते रहें और हमको इस ज्ञान के बारे में, कृष्ण भावनामृत ज्ञान के बारे में हमें और क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेट करें। आई डोंट नो हिंदी वर्ड क्या है उसका, लेकिन इल्यूमिनेट करें इस तरह से आप। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू प्रभु जी। मेरा ये पहली बार है, सो आई एम नॉट अप टू द मार्क, आई एम स्टिल लर्निंग। ऐसा लगा नहीं माता जी आपका पहली बार है ये। यू आर डूइंग वेरी ग्रेट। थैंक यू सो मच। So 7 minutes है, but we'll finish the class. आज हम क्लास जल्दी खत्म करेंगे। बहुत अच्छा क्लास था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि बोल।